Hi guys, in this video we are going to make a layout like this because हमने अब enough सीख लिया है, बॉक्स मॉडल पढ़ लिया, फ्लोट्स पढ़ लिए, अलाइनमेंट्स पढ़ लिया, तो वी आर नाउ इन अ पोजिशन वेयर वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ पेज लाइक दिस. ओके, सो हम लोग ये पेज बनाने वाले हैं और ट्राई करेंगे एज इट इज़ बनाने का. ठीक है, सो there are 3-4 components I'll discuss first of all. So there is this navigation bar which will be a division. Then there is this division again जिसका background में एक image है और उसके ऊपर एक h1 float कर रहा है like this. Okay, then we have this one more division where we have 4 cards. Okay, again these are divs. Okay, so I'll just show you कैसे करना है पूरा चीज़. Yeah, so very simple. The first thing that you will do is you'll create a div for your navigation bar, सबसे top वाले के लिए. Okay, so let's give it a class of nav. Okay, and inside here let's write inside a h3 Zomato. Okay, और इस पॉइंट पे अगर हम इसको रन करें तो you would see फिलहाल ऐसा दिख रहा है. ठीक है, now let's add some styling. And inside the style what we'll do is we'll write dot nav. Ideally this should be id because navigation bar repeat नहीं करेगा आपके पेज में, तो आप इसको id रख सकते हो. ठीक है, आई गेस आपको पता है कब id यूज़ करना चाहिए, कब क्लास यूज़ करना चाहिए. Then what we'll do is we'll first keep a background color of red and we'll see how it looks. Okay, weird. It should be there. Oh, this should be nav. My mistake. This should be nav. And if you reload this again, you can see you're getting this margin from the browser. So you already know how to clear this. So you'll write all, and then you will put margin to be equal to 0 pixels and padding to be equal to 0 pixels again. Okay, so now if you run this, now you have this. Okay, just one second guys. Yeah, now I'll just add I'll add a height of 50 pixels so that this looks like this. Next what we'll do is थोड़ा Zomato ऊपर से चिपका हुआ है, what we can do is we can get inside nav, and inside nav I can get into h3 and I can give a padding of I don't know 10 pixels. ट्राई करके देखते हैं, या थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो आप चाहो तो. You can give a padding of 12 pixels. Yeah, this looks fine. We can also give it a color of white like this. Okay, बाकी आप height वगैरह बढ़ा के देख सकते हो, but at this point it looks fine to me. Next what we'll do is we'll create one more div just beneath this one and let's call this again इसको भी हम लोग id देते हैं, id to be cover because यहाँ पर cover image आने वाला है. ठीक है, और यहाँ पर there would be a h1 और h1 will say Domino's pizza. ओके, और हम क्या करने वाले हैं, हम इसको भी स्टाइल करने वाले हैं विथ अ बैकग्राउंड इमेज. We'll give a URL and inside the URL I have this image, this one. I'll copy the link and I'll paste it over here. Okay, save, reload. So yeah, you can see height ज़्यादा नहीं है div का, इसलिए वो पूरा load नहीं हुआ. So what you can do is you can give the cover a height of let's say 300 pixels. Something like this. Okay, अब ये देख लो आप background repeat कर रहा है, so you know क्या करना है. So you will go and you will write background repeat, no repeat,
और इसको हम लोग कवर कर देंगे. सो बैकग्राउंड साइज वुड बी cover, yeah, like this. Okay, next what we can do is we can bring this Domino's pizza थोड़ा नीचे. ठीक है, तो we'll get inside cover, and cover के अंदर we'll get inside H1 because I guess we used H1. Yeah, it was H1. And what we can do is we can give it a padding of let's say 100 pixels and 0 pixels सेंटर में लाने के लिए. सो थोड़ा सा और सेंटर में ला सकते हैं, लेट्स से बाय राइटिंग 120. या दिस लुक्स फाइन. एंड देन वी कैन यूज द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी टू सेंटर दिस. वी कैन ऑल्सो यूज कलर ऑफ वाइट. सो वी कैन राइट वाइट, एंड नाउ दिस वुड लुक लाइक दिस, राइट? If you want, you can increase the font size. So I can write font size 50 pixels like this. Okay. You can also add text decoration. ये सब आपने अभी नहीं पढ़ा है, but I'll discuss it. Underline. So आप U tag भी यूज कर सकते थे like this. Okay. So Domino's आ गया यहाँ पे. अब हमें क्या करना है, इसके नीचे में वी हैव टू क्रिएट अ दिस हेडिंग नॉन वेज पिज्ज़ा. ओके, सो अब क्या करना है गाइस, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने का है कि दोनों साइड से मार्जिन है. ऑल्दो ये 4 डिफ्स हैं, बट दोनों साइड से मार्जिन है. कभी भी अगर आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट हो कि आपको दोनों साइड से मार्जिन चाहिए और उसके बीच में आपको डिफ्स क्रिएट करना है, आप एक कॉन्सेप्ट यूज करके कंटेनर बनाने का. ठीक है, लेट मी टेल यू कंटेनर बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है. आप यहाँ पे नीचे जाओगे और फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रिएट आईडी ऑफ कंटेनर. ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रिएट अ H1 विच विल लेट्स से वेज एंड नॉन वेज पिज्ज़ा. ओके, आप ये लिखोगे और उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जैसे इस पॉइंट पे अगर आप इसको रन करोगे तो यू वुड सी कि वो एकदम ही साइड में चिपका हुआ है. आपको सेंटर में लेके आना है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कंटेनर एंड देन यू वुड राइट विड्थ. आप एक विड्थ दोगे अपने कंटेनर को, लेट्स से 1000 पिक्सल्स का. ठीक है, और फिर आपको पता है कि इस डिव को अगर आपको सेंटर में लेके आना है तो आपको लिखना पड़ता है मार्जिन ऑटो. ठीक है, एंड नाउ यू वुड सी कि ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ गया. ठीक है, अब इसके अंदर आप जितने भी डिव्स बनाओगे वो हमेशा सेंटर में आएंगे. ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंटेनर के अंदर H1 को you could give a margin top of 20 pixels if you want, so that थोड़ा सा नीचे आ जाए like this. और अब इसके नीचे मुझे क्या करना है, 4 divs बनाने हैं. ठीक है, so I'll go back and inside over here I will create my first div. I'll give it a class of dish, let's say dish. Okay, and inside dish I will add H1 which will say, let's say pizza number 1. Okay, और यहाँ पे P में this is a delicious pizza, ऐसा कुछ लिख सकते हैं. ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसी को 4 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं like this. Okay, so इस पॉइंट पर अगर आप इसको रीलोड करोगे you would get something like this. Okay, now we will go back to the style and over here we will add dot dish के अंदर first of all we'll add a border of 1 pixel, black and solid. Okay, so that सब कुछ ऐसा दिखने लगे. ठीक है, अब ऑब्वियसली मुझे एक के बगल में एक चाहिए तो मुझे फ्लोट्स यूज़ करने पड़ेंगे. So I will first give a width of let's say 24% because you know अगर आप 25% दोगे तो 25, 25, 25, 25, 100 हो गया, बट सभी का 1 पिक्सल का बॉर्डर भी है तो उसको बचाने के लिए 24%. और हम सभी को फ्लोट दे रहे हैं लेफ्ट का. ओके, और अब अगर हम इस पेज को रोट करें, ये देखो थोड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है. थोड़ा ऊपर से मार्जिन ले सकते हैं. सो वी कैन राइट मार्जिन टॉप
30 पिक्सल्स. अब थोड़ा ऊपर से हमें मार्जिन मिल गया, राइट. वी कैन ऑल्सो गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ लेट्स से आई डोंट नो F2, a shade of grey. बहुत ही लाइट आया. और हम क्या कर सकते हैं अब, थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं टू लेफ्ट, मार्जिन टू लेफ्ट ऑफ लेट्स से 10 पिक्सल्स. ये ट्राई कर सकते हैं हम लोग. 10 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया. अगर आपको 10 पिक्सल रखना है तो विड्थ कम करना पड़ेगा. सो लेट्स से हमने 22% रख दिया. ये सही है गाइस, ठीक है. अब इन कार्ड्स के अंदर आप इमेजेस ऐड कर सकते हो और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. अब एक चीज़ आपको दिखानी है मुझे, वो ये है कि इसको मिनिमाइज़ करने से या इसका विड्थ कम करने से क्या होता है इस पेज का. सी, अगर आप इस पेज का विड्थ कम करोगे सब ठीक है, सब ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद दिस विल हैपन. सी, ये स्क्रॉल होने लग जाता है ये कंटेंट. एंड दिस इज़ बिकॉज आपने अपना जो कंटेनर है उसका जो विड्थ है वो आपने विड्थ रखा है, ठीक है. आपको क्या करना है, इसको मैक्स विड्थ कर देना है. जैसे आप इसको मैक्स विड्थ करोगे और रीलोड करोगे, यू वुड सी कि अब ये एकदम रीसाइजेबल है और कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, ठीक है. ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, मोबाइल पे भी अच्छा दिखेगा. सी, राइट. और द बेस्ट पार्ट अबाउट यूजिंग अ कंटेनर इज कि आप ये विड्थ बढ़ा घटा सकते हो. सो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे 1300 कर दिया तो ये चीज़ ऐसी दिखने लगेगी, थोड़ी सी और स्ट्रेच्ड, ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या करना है. ये स्पेस इसलिए बच रहा है यहाँ पे बिकॉज हमने ज्योमेट्री ठीक से कैलकुलेट नहीं किया, बट अगर आप सही से कैलकुलेट करोगे तो ये पेज बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है. सो यूजिंग दिस टेक्निक गाइज यू कैन क्रिएट ऑलमोस्ट एनी लेआउट, ठीक है. सो आई गिव यू सम असाइनमेंट्स जो आपको करने होंगे, लेआउट्स क्रिएट करने होंगे आपको. बट ट्रस्ट मी, दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग अ वेबसाइट लेआउट और यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड हो जाएगा. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.